Welcome to another episode of Cricket Chat with Baz, and today my co-host again is the ever handsome Sarshad Daure, and here he is with me. Sarshad, hi. Okay, and our guest today is one of the most respected, most loved, and the most passionate cricketer, or the cricketing personality, so to speak, in the UAE circuit. Everyone knows him with the nickname of Abba, but trust me, he is fondly known by a lot of us by Modi Bhai. That's his name, Mudassir Ali. Sir, welcome to the show. Shukriya, Shahbaz. Thanks a lot, dear. All right. So Modi Bhai, for all who the little less unknown people who don't know Modi Bhai, he's done various things. He is has led wonderfully a beautiful cricket team called Chargers. That's where we met him. I met him personally. Sashuba also met him there as well. From then on, he has been part of founder member of a lot of different teams. He's been doing commentary on in different leagues across UAE. He's done the T10 leagues as well. He's been instrumental in getting a lot of these current UAE players to be kept in practice when the off season is going on, because he makes sure that they keep getting games on and off the field as well. He's been great motivator to a lot of cricketers all across UAE. And personally speaking, with me, I have seen him when he started his cricket with Chargers, the old Chargers. Then he founded the new Chargers, and they took it to some insane heights of success. So Modi Bhai, it's a huge honor for me and a great pleasure that you have decided finally to come and give me your time. And I don't know what to say. Thank you so much for coming. नहीं, मैं एक्चुअली आपको और शर्षु भाई को थैंक्स बोलना है. लॉकडाउन के जैसे पहली चीज तो काफी लंबा जग रहे हैं रात में और काफी देर से हो रहा है, और आप मेरे को UAE 3 o'clock से आप ट्राई कर रहे थे, एंड आई वाज रिक्वेस्टिंग यू के शहबाज एक आधे घंटे के बाद. तो थैंक्स अ लॉट शर्षु भाई एंड शहबाज. मैं देख रहा हूँ वैसे आपके वीडियो देख रहा हूँ शहबाज, यू आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब. तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि आप इसी में कुछ अलग से लेके आप आगे जाएं, आप इंशाल्लाह. शुक्रिया. आमीन. Modi bhai, just to add, not to forget, ये हमारी second क्या बोलते हैं, how should we put it, meeting request आपने accept की था. पहली वाली तो totally scrap करनी पड़ गई थी due to the same reasons as you said, due to the lockdown, रोजे थे, सो रहे थे, and it wasn't feasible. So anyway, thank you very much finally. And again, जो शहबाज ने कहा, just to add on that, people who are involved with cricket in UAE, be it playing, be it organizing, be it funding, sponsoring, etc., they are definitely aware of who or what Modi Bhai is. Yes. And well, yes, in that also I would say he's more famous by the name Modi Bhai. So yes, welcome aboard. So the first question मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी तो माशाल्लाह से आपने काफी अच्छा आपकी जर्नी रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई. ऑफ कोर्स ये आपकी और मेरी जर्नी अभी तक चालू है. Ongoing journey with cricket in UAE. Never to stop this. We don't want to stop this. It's too early for us to even think about it. Start कहाँ से किया आपने? आप UAE में? ठीक है, चलो UAE कहेंगे, क्योंकि अब हम तो इंडिया से तो बचपन से हम क्रिकेट खेलते रहते हैं गली में, लेकिन UAE का सफर काफी अच्छा था क्योंकि यहाँ पे एक टीम हुआ करती है मैंगलोर सीसी. अभी भी है मैंगलोर सीसी, जहाँ पे जिसमें अपने 2-3 आप जानते भी, अगर आप मुलाकात, डैलन एक प्लेयर है और फजल है, तो इनके साथ मेरी शुरुआत हुई थी. बट लॉन्ग रन तक नहीं जा सका. 1 साल के बाद उसको टीम को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो ग्रुप था 10 मैंगलोरियंस थे और मैं एक ही हैदराबादी था, तो वो कंफर्टेबल वो नहीं आ रहा. आपको कट करना चाहूंगा, वो टाइम पे कोई हैदराबाद की टीम एक्टिव नहीं थी. आई डाउट नहीं हैदराबाद नहीं होंगे वो टाइम पे. नहीं शर्षु भाई, आप भी जानते हैं कि हैदराबादी अगर पूरे 11 मिल गए तो काफी मुश्किल है, तो मैं ज्यादातर दूर ही रहता हूँ हैदराबाद. हेड हार दे ना. नहीं, लेकिन मेरी काफी अच्छी जो जमती है, आप बिलीव करें, जो गुजरात से है या बॉम्बे है या फिर जो है पाकिस्तान, आप भी देखें कि मेरा ज्यादातर लॉट यही है यहाँ पे, जो दोस्तों का लॉट है. हैदराबादी भी 1-2 है क्रिकेट में, बट डेफिनेटली सीमेंट पे पाकिस्तानी से. उसके बाद जो है माशाल्लाह आप है, जैसा कि आपके टाइम पे जर्नैल भी थे. नहीं, क्योंकि ऑन ए सीरियस नोट,
जब हम खेलने से काफी थोड़ा टाइम पहले आपका और जर्नल का काफी अच्छा नाम था, लेकिन आप खुद बताया कि हैदराबादी में सिर्फ एक आध प्लेयर थे होंगे जो यूएई में जिसका नाम बना सीमेंट पे, क्योंकि हमारी टीम तो सीमेंट की थी, तो ज्यादातर में इसलिए मेरा सर्किल भी बॉम्बे के हो गए या केरला के है और पाकिस्तानी से। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि आप और जो मैं पहली बार मिले थे, इफ यू रिमेम्बर, इट वाज इन दैट ईसीटी ग्राउंड, और पहले मैच में आपने कुछ 82 या 86 कुछ आपने किया था और मैन ऑफ द मैच बने थे, और पहला ही मैच था, आपको याद है या नहीं है पता नहीं, बट मेरे पास स्कोर कार्ड वो भी है, मैं ढूंढ रहा था 2-3 दिन पहले। ये चार्जर्स का ही मैच है ना? चार्जर्स के लिए लेके आए थे शर्टू भाई, थोड़ा क्रिकेट रोकने के बाद वापस स्टार्ट कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से सोहेल, जतिन, इनके जैसे शर्टू भाई की और मेरी जान पहचान शुरू हुई थी, और माशाल्लाह से काफी अच्छा टाइम गुजरा शहबाज व्हेन वी स्टार्टेड चार्जर्स। तो चार्जर्स काफी लेट शुरू हुई बिकॉज आई स्टार्टेड प्लेइंग इन यूएई इन 2008, बट चार्जर्स फाउंड हुई इन 2013 एंड पे, 14 स्टार्टिंग पे। तो लेकिन काफी अच्छे दोस्त मिले शहबाज जब चार्जर्स बनी। देखिए अभी 2014 के बाद 2017 बीच में बंद हुई टीम, लेकिन आज भी दोस्ती कायम है। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट से हटके, क्योंकि एक बड़ी चीज है, आप क्रिकेट छोड़ने के बाद भी अगर आप एक दूसरे मिलके टच में है, ये काफी बड़ी बात है यूएई में, क्योंकि लोग यहाँ पे टीम छोड़ते हैं, आगे निकल जाते हैं। शर्शु भाई है, आशिफ है, जतिन है, सोहेल है, जुनेद है, फीडो, मित्तल, आप हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज थी कि लड़के अच्छे उसमें थे, और किसी को ये नहीं था, देखिए ओपन सी बात है, इसको पैशन के लिए खेलते थे, किसी को ये नहीं था कि मुझे बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए। जब तक एक लेवल पे वो टीम जा रही थी, काफी मजेदार थी और काफी कुछ बातचीत भी होती थी ग्राउंड में, जब गुस्सा होता था तो एक दूसरे से काफी तहजीब में आके अल्फाज निकलते थे। फिर ये जो बात आपने बोली ना मुदीब भाई, बिल्कुल सही बोली है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टीम दैट इज प्लेइंग इन दिस सर्किट, कि जब तक एक वो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के मुझे बैटिंग चाहिए, या मुझे इस नंबर पे बैटिंग चाहिए, मुझे बॉलिंग चाहिए, मुझे इस नंबर पे बॉलिंग करना है, या मुझे यहाँ बॉल करना है या वहाँ, ये जो मैं का फैक्टर जब आ जाता है ना, तो वो एक्चुअली एक टीम का डाउनफॉल स्टार्ट होता है। टीम टूटनी भी लगती है, क्योंकि इट्स लाइक यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग 1 से 2, 2 से 3, एंड दैट्स वेयर व्हाट आई फील टीम में डिफरेंसेस आना शुरू होती है, जो चार्जर्स में नहीं थी। विच आर एब्सोल्युटली राइट, आपने काफी अच्छा लेके चला था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही नहीं था डेफिनेटली ह्यूमन नेचर, you cannot live without it, it's that way, let's put it that way। लेकिन आपने उनको काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया, और put it that way, आपने उनको सरफेस नहीं होने दिया, और जैसे ही वो सरफेस होते थे, you would make sure that you take care of it and you eradicate it and you do not let it grow। इस वजह से माशाल्लाह से हमारी चार्जर्स की टीम जो है वो इतने लंबे अरसे तक चली, and we were one of the top teams in the circuit। I mean अच्छी खासी दहशत मचा ली थी इस टीम ने। यानी अगर चार्जर्स के साथ मैच है तो 3-4 दिन पहले से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती थी कि क्या किस प्लेयर के अगेंस्ट क्या करना है और कैसे करना है। यस, इट वाज एग्जिस्टेंट इन चार्जर्स, डोंट वांट टू टेक द नेम्स, आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह मैनेज किया। I want to add to that, अभी सारे 11 के 11 थिंकिंग के तो नहीं आएंगे ना, that's what makes it more fun। Yes, like I agree with Ashal भाई, जो मैनेजमेंट स्किल मतलब मोदी भाई अनबिलीवेबल था आपका, and I know कि आपको जब and this is between me and मोदी भाई, because मुझे पता है कि जब मोदी भाई का मुझे फ्राइडे का मैच है अगला वाला, मुझे अगर मंडे को उनका कॉल आ रहा है कि शहबाज शायद मेरे को 2 लोगों का गलती होगा, तो उनको रेडी रहना पड़ेगा। ये कॉल मुझे मंडे को याद आता भाई, तो प्लानिंग उनकी एक हफ्ते पहले से शुरू होती है। कभी कभी तो 2 हफ्ते पहले बोलते थे कि 2 हफ्ते के बाद मेरा मैच है, शायद उसका उधर मैच होगा, क्लैश हो सकता है, कंपनी का मैच होगा किसी बंदे का, तो ही विल ऑलवेज कीप कि ये हफ्ते को किसी का मैच मत लेना, कंफर्म कराओ, नहीं कंफर्म हुआ ना तो तेरे खाने बिरयानी का खर्चा मेरे होगा। दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो ही यूज्ड टू से, कीप श्योर यू नो वी हैव द that was the passion। I mean ये बोलते हैं ना, ये मुद्दी भाई का passion, love और let's put it this way, enthusiasm towards cricket थी इनकी। ये मुझे पता है, I'm sure, I mean I have not seen it, but I can portray this in my mind from what मैं जितना मुद्दी भाई को जानता हूँ, कि अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं,
फोन पे लगे हुए हैं, किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं या अपने किसी कस्टमर से या व्हाटएवर इट्स बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, तो वो फोन पे उससे बात तो कर रहे होंगे, लेकिन नीचे पेन और पेपर है जिसमें 11 ये फ्राइडे की 11 या सैटरडे की 11 वो नोट डाउन हो रही है। तो जैसे ही वो फोन रख दिया गया उसके बाद पता चलता है, ओ ओके फाइन, फिर आता है शहबाज आई माइट नीड यू दिस, ओके, क्योंकि अभी टीम लिखी है तो उसमें विकेट कीपर मिसिंग है, तो दैट्स हाउ इस तरीके से चलता था, इसलिए मंडे को आपको कॉल आ जाता था। I'm sure. मुझे भाई, would you agree to this? एक टाइम पे काफी इन्वॉल्व हो गया शहबाज टीम्स को लेके, किस तरीके से आगे जाना है। और बिलीव मी, शर्शु भाई और इप्ती लेटर ऑन ज्वाइन किया था एक 1.5 साल के बाद। तो शर्शु भाई और आशिफ को मैं ऑफिस से बुलाया करता था। मैं शर्शु भाई को तो मैं टॉर्चर करता था, लिटरली मैं टॉर्चर करता था आफ्टरनून के टाइम पे जब उनका लंच ब्रेक होता था, या कॉल करना, या नहीं तो शर्शु भाई और पहले दीपक आया करता था। दीपक स्टार्टिंग में जब तक टीम अच्छी है, स्ट्रॉन्ग थी, दीपक था। बट शर्शु भाई जब से ज्वाइन हुए, तो क्योंकि जो भी मेरे डिसीजंस थे उसमें शर्शु भाई का इन्वॉल्वमेंट भी रहा करता था, क्योंकि सीनियर थे। सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारी टीम में सीनियर्स को रेस्पेक्ट था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था शहबाज। अब शर्शु भाई मेरे से ज्यादा सीनियर शर्शु भाई थे, और उसके बाद फिर मैं था। तो शर्शु भाई और मेरे अगेंस्ट कोई जाते नहीं थे, और डिसीजन पसंद भी नहीं आया। ठीक है, बाद में आप पूछते थे कि भाई ऐसा क्यों, लेकिन जब सामने रहते थे तो कोई हम लोग के अगेंस्ट पे जाता नहीं था, क्योंकि आउट ऑफ रेस्पेक्ट। और वो रेस्पेक्ट है, इसीलिए आज तक हम लोग एक दूसरे से मतलब चल रहा। जतिन हो गए या जो भी अपना सर्किल है, ब्लूज का सर्किल है, शर्शु भाई है, इसी है, तो माशाल्लाह से इट वाज गुड। एंड विनोद बांडा का सबसे बड़ा किरदार था चार्जर्स जो ऊपर लेके जाने में। बांडा स्पीडो के साथ आया करता था, द लेफ्ट आर्म स्पिनर विनोद बांडा। मुझे पता है शहबाज को शायद पता है। बांडा तो मैं और बांडा ने पता नहीं कितनी अनगिनत शामें गुजारी है। आज मुझे भाई का कॉल आया था, आज बहुत लंबी तक बात हुई, चल तू आ, हमको जा रहे हैं जरा बाहर आउटिंग करते, कोई शौरमा खाते, चाय पीते हैं, तो वो था इस बार पे कि मैं बात सीधी तरह टू कट इट शॉर्ट सीधा बोलो ना, शबाब जाके बैठते थे। नहीं शर्शु भाई, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि जब ठीक है हर किसी की लेट एंट्री होते गई और टीम चेंज होते गई, लेकिन जब स्टार्टिंग में आपको याद होगा जब अपन शुरू करे थे 2014 जैन में, उस टाइम पे आप ज्वाइन, मेरे को याद है न्यू ईयर के वेरी नेक्स्ट डे या कुछ ऐसा आप ज्वाइन हुए थे 2014 में। उसके बाद जब भी मैं शर्शु भाई से कुछ डिस्कस करता था कि शर्शु भाई ये टूर्नामेंट खेलना है, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है पेमेंट का, स्पॉन्सरशिप का इश्यू होता था, शर्शु भाई वाज अ बिग सपोर्ट टू मी। शर्शु भाई कभी कोई टूर्नामेंट मेरा रहने दीजिए, शर्शु भाई को बोलता है शर्शु भाई मेरे को इसमें एनरोल करना है, शर्शु भाई एक ही बोलते थे मुद्दी भाई खेलना है चार्जर, ओके डन मेरी तरफ से। तो ये जो एंकरेजमेंट, जो सपोर्ट था ना, अगर उस टाइम पर शर्शु भाई बोलते यार ठीक है आप अकेले ही देख लो, तो शायद मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता। नहीं, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, बिकॉज़ जहां तक मुझे याद है सर, देयर आर लॉट ऑफ टूर्नामेंट जिनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, और मुझे इतना फॉर श्योर पता है कि आप और शर्शु भाई और बाकी का मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद इतनी कुछ हद तक, बट the contributing or the financing players of the team वो you two majorly obviously। आपने तो लिटरली कब से पैसे डाले मुझे याद भी नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं, और अभी भी आई एम श्योर कि कितने लोगों का मॉनेटरी सपोर्ट करते भी होंगे क्रिकेटर्स को, बट जहाँ तक पैसे डालने की बात है, बहुत सारे लड़के जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उन्होंने हाथ ऊपर किए हुए हैं, दूसरी टीम को जाके तरफ खेला भी है, बिकॉज पैसे नहीं डालने नहीं थे, ओके, बट एट द सेम टाइम पैसे ना डाल के भी ओपनिंग करनी है, ओपनिंग बॉलिंग करनी है, आई वांट टू हैव माय कोटा ऑफ ओवर्स डन, अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं इतना करूंगा कि मैंने इतने पैसे दिए हैं और मैं दूंगा, तो वो शर्तें भी होती थी, जिस वजह से आप दोनों ने, मेरे सामने की बात है, मुझे पता है कि आप दोनों ने भी मना भी किया लोगों को कि नहीं, वो टैलेंटेड रहेंगे अपनी जगह पे, अगर इज्जत से नहीं खेल सकते तो नहीं चाहिए, कितने भी पैसे देने वाला खेलना। बट एट द सेम टाइम आप दोनों ने भी, और इवन इफ्ती ने भी, आपने पैसे भी डाल के बहुत दफा आपने बाहर भी बैठा है एज 12th मैन 13th मैन, दोनों की बात कर रहा हूँ मोस्ट स्पेसिफिकली, बस मुझे याद है वो जो DSS का टूर्नामेंट, DCC का टूर्नामेंट था, जो अबू धाबी में जो ग्राउंड पे खेले थे, येलो जर्सी वाला, it was DPL दुबई प्रीमियर लीग। उसमें आप भी एक बार एक मैच में बाहर बैठे हो, शर्शु भाई भी एक मैच में बाहर बैठे हैं, and I used to come to watch the match, मुझे पता है। So it was something that is literally अभी सोचने पे ना, आफ्टर थोड़े बूढ़े होने के बाद सोचने पे वो हैट्स ऑफ लगता है। मुझे ऐसे लगता था क्यों बैठ रहे हो बाहर, आपने पैसे डाले, आपको खेलना चाहिए, मैं अगर पैसे लाता तो मैं लाजमी खेलता, तो वैसे थॉट प्रोसेस होती है लोगों की,
But hats off to you guys. It was all about शहबाज टीम जीतना और टीम आगे जाना. ये था, ये नहीं था कि मेरे को खेलना है, शर्शु भाई को खेलना है, क्योंकि अगर हमारे अगर खेलना रहता तो हम कहीं पे और पे करके कोई टीम में भी जाके खेल सकते थे इंस्टेड ऑफ इतना खर्चा करने की. और बेस्ट पार्ट क्या था, क्योंकि शर्शु भाई तो स्पॉन्सर के तौर पे थे कि सपोर्ट करते थे काफी. ये एक अच्छी चीज, इसलिए शर्शु भाई कभी किसी को मालूम भी नहीं शायद कि चार्जर्स में शर्शु भाई का कितना इनपुट था. इसलिए अच्छा हुआ कि आप ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो एटलीस्ट पीपल शुड नो दिस कि क्योंकि कई ऐसे काम हो जाते जो लोग करते आगे नहीं आते. शर्शु भाई का मोस्टली अगर मैं कहूंगा कि अगर 100% का अगर हम लोग का कुछ चल रहा है पेमेंट का, तो मेरे ख्याल से 40 to 50% मैं कहूंगा कि जो मेरे 1-2 साल थे, शर्शु भाई सपोर्टेड मी अ लॉट एंड ही नेवर, मतलब वो मेरे को ये कभी जाहिर नहीं करते थे फील्ड पे कि ठीक है मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो मेरे को जो करना है वो करने दो, आई शुड बॉल और आई शुड बैट. दिस वाज द थिंग कि मजा आता था खेलने में. मेरे को मालूम था कि टेंशन नहीं है, इफ आई एम गोइंग ऑन फ्राइडे टू द ग्राउंड, आई नो कि मेरे 11 क्या है और 11 किसको किधर खिलाना है. और इतना भरोसा था कि वो 11 मेरे अगेंस्ट तो कुछ बोलते नहीं. मुस्तफा वाज देयर. मुस्तफा आप अच्छी बैटिंग करता, बट ही नेवर गॉट टू डू बैट. टॉप की ऑर्डर 5-6 के ऊपर भी कभी नहीं खेला, वो जाता था लास्ट में. अगर एक ओवर में बेचारे को मार पड़ गई तो मैं उसको ओवर भी नहीं देता था, मतलब फ्राइडे तो वेस्ट हो गया. बट जेलिंग अच्छी थी. only Hyderabad you played with, right? In the UAE. Yeah. अभी तो बड़ा हो गया. नहीं, but he was a great talent. He is a great talent. Let's put it this way. Yeah. Till date, I will say. अभी पता नहीं वो कंटिन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है. शर्शु भाई DPL में उसकी स्विंग, he was around 18-19 years old at that time. Absolutely. Yes. And the best part was ये थी कि वो यंग टीम के अंदर जैसे मुस्तफा हो गया, let's put it this way, जुनैद for that instance, फिर बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो एक प्लेटफॉर्म मिला था इतने बड़े टूर्नामेंट का. आई मीन यस, सीमेंट पे खेल रहे थे रेगुलरली, दे यूज्ड टू बी नाइट टूर्नामेंट्स होते थे, डे के टूर्नामेंट्स होते थे फ्राइडेज को और सैटरडेज को, लेकिन टर्फ के ऊपर आई मीन विद इट वाज अ वेल रेप्यूटेड टूर्नामेंट. तो वो एक तरीके से ऐसा था कि एक एक्सपोजर था जो हमारी टीम को चाहिए था, विच वाज नेसेसरी. उससे पहले भी मतलब वो टूर्नामेंट एंटर होने के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स आई थी. बुद्धि भाई बताएंगे. You remember, right? मैं कल ही डिस्कस कर रहा था ये फीडो के साथ. ये इत्तेफाक से कल फीडो के साथ और सोहेल के साथ मेरी यही डिस्कशन हो रही थी. शर्शु भाई, मैं बोला उस टाइम पे शर्शु भाई का आना कितना वो हुआ और उसमें से मेरे को निकाल लिया शर्शु भाई वो प्रॉब्लम में थे. तो I remember that issue. ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको ये बात I know the issue. I mean, come on, शर्शु भाई को मैं इतने सालों से जानता हूँ, आपको मैं इतने सालों से, मुझे दोनों की तरफ के पॉइंट्स पता है and I exactly know the issue. But let's not talk about those negativities in life. I think एक कहते हैं ना, but एक और चीज है सर, अंधेरे के बाद जो उजाला आता है वो और ज्यादा सुनहरा होता है. So I think that negativity that happened, that was the instrumental thing because of the Chargers became such a beautiful and brightest teams. एक्चुअली दीपक है, शर्शु भाई है, इप्ती है, इन लोग का काफी बड़ा रोल था क्योंकि सपोर्ट करने में, क्योंकि शुरुआत तो दीपक के साथ ही हुई थी. बट देखिए दीपक के साथ 2015 वाज द लास्ट व्हेन वी प्लेड टुगेदर फॉर चार्जर्स. वो समझ गया था कि टीम एक अलग लेवल पे जा रही है एंड उसकी जगह नहीं बन रही है, सो ही लेफ्ट. बट बिलीव मी, आज 5 साल के बाद भी आज मेरी और दीपक की दोस्ती सेम वैसी है. दोस्ती में फर्क नहीं आया क्योंकि वो मैच्योरिटी लेवल था, वो थिंकिंग प्रोसेस थी कि भाई कहाँ पे टीम जा रही है. अगर मैं आज भी अगर उसको रात में भी और फोन करूंगा और कुछ बोलूं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो आ जाएगा उठ के. तो उस टाइम की टीम में लड़के काफी अच्छे थे शहबाज उस टाइम पे. नहीं, बट वो होता है सर. आई मीन जो असली दोस्त होते हैं वो भले कुछ भी हो जाए, कितनी भी चांसेस मिले नहीं मिले दूसरे दोस्त की वजह से, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. दोस्ती होती है, बस होती है. तो लेट्स मूव ऑन फर्दर फ्रॉम दोस डेज. मुझे एक और सवाल पूछना था, मतलब सेशन में कि जब आपने अचानक से एक नई चीज देखने लगी हमको कुछ अराउंड 5-6 years बैक, अराउंड 2016-15 के जो सीजन था उसमें कि there was this big bearded captain of Chargers team who was diving everywhere and stopping runs like a Jonty Rhodes और catches एकदम brilliant लेने अचानक शुरू कर दिए और थ्रोज डायरेक्ट हिट लगने शुरू हो गए थे. मैंने कीपिंग भी की थी, मुझे पता है मुझे हाथ में ग्लव्स की जरूरत थी, डायरेक्ट विकेट पे लगा. तो ये अचानक फील्डिंग में जो चेंज आया था, ये क्यों और कैसे आया? देखिए, ना तो बॉलर थे ना कोई अच्छे बैट्समैन थे.
जो अपने हाथ में थी वो फील्डिंग ही थी, और अगर जगह बचानी थी टीम में तो थोड़ा बहुत ये करना पड़ता था। बट मैं शर्शु भाई वाज ऑन पॉइंट एंड आई यूज्ड टू डू ऑन कवर्स। बिलीव में अगर उधर अगर हवा में है तो मतलब पकड़ते थे हम लोग, तो एफर्ट पूरा रहा करता था। बिकॉज ऑलमोस्ट एट द टाइम वी वर 35-38 years old, बट स्टिल दिन में 2-2 मैच खेलते थे, तो एक पैशन था, मजा आता था। और साथ में जो ग्रुप था उनके साथ खेलने में काफी मजा आता था। पहले स्लोली वो आहिस्ते तक कम होते चले गया पैशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह काफी मजेदार फेस था वो। मोदी भाई, थैंक यू सो मच फॉर दैट थॉट। सो आई हैड वन क्वेश्चन, मेरे को एक सवाल था आपसे पूछना। जो हमने बातें की है वो थोड़ी सी खूबसूरत से अल्फाज ग्राउंड पे जब यूज होते हैं, तो मैंने आपको पर्सनली स्पीकिंग मैंने बहुत यूज किया। आपको पता है, बहुत लोगों को पता कि मैं सब खेला, मेरी वजह से बहुत सारे मैचेस कैंसिल हुए, लफड़े झगड़े सब हुए। बट ग्रोइंग अप फ्रॉम दैट, मैंने आपको कभी भी किसी भी मैच में ना ऐसे गुस्से में नहीं देखा था। मतलब मैच के बाद आप गुस्सा करते थे, मैच के पहले करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन एक मैच था जिसमें शर्षद भाई भी थे, और वो मैच लकीली अनलकीली आई डोंट नो, बट आई वाज प्लेइंग समहाउ, मैं कीपिंग कर रहा था वो मैच में। और ये मैच था जब इट वाज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक हॉस्पिटल की टीम थी, नाम नहीं लूंगा मैं वो टीम का, बट उस टीम में मेजॉरिटी जो लोग थे वो आपके जैसे माशाल्लाह खूबसूरत सी दाढ़ी वाले लोग थे। और वो टीम के जो हैदराबादी नहीं थे। हाँ, हैदराबादी नहीं थे माशाल्लाह। अच्छा भाई, आपको याद है? बताओ, मुझे बोलने दीजिए पूरा ये। उस सीन में ऐसा हुआ था कि जो लोग देखेंगे अब ये वीडियो, हमारे जाने पहचाने वाले, उनको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। तो बहुत सारे होंगे मैच में, तो एक बंदे को एलबीडब्ल्यू की अपील हुई, हमने हाथ उठाया, तो मैंने अपील की, आपने क्या खबर थे, शर्षु पॉइंट में थे, अपील की, और अंपायर ने स्टीव बकनर के जैसे टाइम दिया 10 मिनट या कुछ आउट देने के, लिटरली। मतलब उन्होंने एक क्रॉस कर लिए थे ऑलरेडी रन लेके, और खड़े थे दूसरा बैट्समैन, दूसरा रन नहीं ले रहे थे, तो अंपायर ने दे दिया आउट। तो थोड़ा सा हुआ मुंहमारी, आउट कैसे वैसे वगैरह, वो चले गए। तो बाहर से शायद किसी ने कुछ कहा जो मैंने नहीं सुना, आपने सुना। उसके बाद आप जो गुस्सा किए, वो क्या हुआ था वो एपिसोड, जरा आप इसके आगे बताएंगे तो सही होगा। प्रॉब्लम वो नहीं थी, जब अपील हुई तो स्ट्राइकर जो है रन करते हुए नॉन स्ट्राइकर स्ट्राइकर पे चले गया, और एम्पायर उस टाइम पे थोड़ा लेट होके उसने आउट दिया। तो जो नया बैट्समैन वॉक इन कर रहा था उसको आना चाहिए स्ट्राइक पे, राइट, क्योंकि एलबी आउट हुआ जी, वो जाके नॉन स्ट्राइकर पे ठहरा हुआ है जी। और जो नॉन स्ट्राइकर जो स्ट्राइकर पे है वो एम्पायर को बोलता है कि भाई बैटिंग तो मेरी आएगी, क्योंकि मैंने रन भागते भागते मैंने क्रॉस किया, आपने आउट दिया। अब एम्पायर उसको समझा रहा है कि भाई आप एलबीडब्ल्यू हुआ वो प्लेयर, तो आप नॉन स्ट्राइकर पे रहते, और था बिल्कुल आखिरी विकेट पे, उसको बैटिंग करनी चाहिए थी शायद, तो वहां पे चल रहा था। हाँ, तो काफी गर्मा गर्मी हो गई, तो वो भी मारने चले गए। अच्छा खासा किस्सा हो गया था वो, लेकिन वो मजेदार चीज थी वो, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वो एक मेरे तरफ से सवाल था। अभी शर्षु भाई की बारी है। नहीं, वो इस पे ऐड करूंगा मैं कि कभी इनको भड़कते हुए नहीं देखा या कुछ। हाँ, ऐसे कह सकते हो कि ग्राउंड के बाहर अगर कहा हो तो ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द मैच ग्राउंड के अंदर मुद्दी भाई नहीं भड़के, ऐसा कोई मैच या ऐसा कोई गेम हुआ नहीं। क्योंकि बोलते ना, जो लड़के खेलते थे उन्होंने भी ठान ली थी कि एक ना एक बार तो इनको गुस्सा दिलाना ही है, इनके बीपी हाई करना ही है। वो एग्रेशन की बात अलग है सर। मैं कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन के साथ गुस्सा, अपने लड़कों के ऊपर एग्रेशन दिखाना, दैट्स वाजिब थिंग। आई मीन, हमारे माशाल्लाह टीम में लड़के भी चार्जेस में ऐसे थे कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लाइन में भी नहीं आते थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ऑपोजिशन के साथ भी बात कर रहा था, ऑपोजिशन के साथ कभी कोई मुंहमारी नहीं की, बल्कि नहीं, वो एक ही, मेरे ख्याल से वो एक ही इंसिडेंट था, क्योंकि ये था कि हम अगर अपोजिशन को रेस्पेक्ट देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमें भी रेस्पेक्ट मिलेगा। तो मेरी थिंकिंग यही थी कि जब तक के हम उनके साथ इज्जत से पेश आएंगे तो वो हमारी इज्जत देंगे। सेम गोस विद द एम्पायर्स आल्सो, क्योंकि शुरुआत में जब खेल रहे थे तो एम्पायर से काफी, क्योंकि यू नो इन द हमरिया एम्पायरिंग कैसी होती है, तो वहाँ पे एक दो बार हो गई थी। शर्षु भाई भी थे वो मैचेस में, मेरे ख्याल से याद होगा शर्षु भाई को। बट स्लोली फिर मैच्योरिटी लेवल भी आ गया, उसके बाद जो है सोच लिए थे कि भाई वो भी इंसान है, उनसे भी गलती होती, तो वी शुड रेस्पेक्ट देम आल्सो। खास तौर से मैं ये जो भी उन्होंने ये कहूंगा कि आप 0 पे आउट हो जाते, कैचेस मिस होते, तो सेम थिंग गोस विद द एम्पायर्स आल्सो। कभी एक आध ब्लंडर हो जाता है, बट बिल्कुल भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी। बिल्कुल। आई रिमेम्बर, मेरा ये दूसरा या तीसरा मैच था चार्जर्स के लिए, शायद याद होगा आपको।
बहुत बड़ा बैट एंड पैड था और मैंने मेरे ख्याल से 2 बॉल खेली थी. आई मीन आई वाज गेटिंग, मैं शायद 1 डाउन गया था कि क्या उस मैच में. एंड पहली बॉल कवर्स पे, पहले 2 बॉल कवर्स पे 4 मारे थे, तो इट वाज लाइक द फील वाज देयर, अच्छा फील आ रहा था. और तीसरी बॉल शायद थी, वो इतना बड़ा बैट एंड पैड था और एम्पायर ने आउट दे दिया. तो इन दैट आई मीन एक तो वो एडलन रश था कि भाई बाउंड्रीज आ रही है, इट्स अ गुड स्टार्ट करके था, और उसके अंदर इतना बड़ा बैट एंड पैड. तो यू नो आई जस्ट गॉट कैरिड अवे और मैंने भी थोड़ी एम्पायर से बदतमीजी कर दी, विच आई शुडंट हैव डन, विच आई अपोलोजाइज्ड लेटर. क्योंकि आई मीन बट इट वाज सो बिग. एंड ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे opposite team also plays a very important role. I don't know whether they were really sympathetic और चढ़ा रहे थे मुझे, लेकिन जब मैं बाहर जा रहा था बहुत बुरा हुआ यार. इतना बड़ा एज, मैं वहां खड़ा था, मुझे सुनाई दे रहा था. सुधी भाई आपको, सुधी भाई आप वगैरह लोगों ने भी सुना, वो काफी बड़ा एज था, बैट एंड पैड था. बट यू नो जस्ट ट्राइंग टू से कि उस वक्त किस तरह बहती गंगा में लोग बोलते हैं ना हाथ धोना, तो यू नो इट हैपेंस. But it turned out to be a very ugly incident, although it just lasted for less than a minute. But I felt bad. With due respect, जहाँ हम cricket की respect करते हैं, players की respect करते हैं, the umpires also deserve their share of respect and should be. So मोदी भाई, मुझे एक और चीज, मतलब बहुत सारी चीजें हैं obviously लैंड में, बट एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि ये चार्जर्स के साथ शबाब कैफे का क्या रिश्ता है? मैं रहा करता था दुबई अल नहदा में, एंड आशिफ यूज्ड टू स्टे इन देरा नायब. अब एक पॉइंट होना है जहाँ पे सबको मिलना है, तो आशिफ को चाय पीना काफी पसंद है. वो बैठे बैठे 10 चाय भी पी जाता हो. जैसे तो आपको नहीं है, आपको भी पसंद है? नहीं, मतलब उतनी भी नहीं थी शर्ट में जितना आशिफ पिया करता है. तो क्योंकि बांडा भी तो देरा में था. नहीं, बांडा सब देरा में थे. शबाब की जो मेन खोज निकली बिकॉज वो आशिफ का था, क्योंकि देरा से आशिफ का जो इल्लॉस का घर था शारजा में, तो वो रूट पे शबाब आया करती, वो जो छोटी सी होटल मतलब कैफेटेरिया थी, और वहाँ पे बैठने के लिए काफी स्पेशियस था. वहाँ पे कोई आते भी नहीं थे, तो टीम मीटिंग हम लोग की वहीं पे हुआ करती थी, और टीम मीटिंग तक बहाना था, एक्चुअली सबसे मुलाकात हो जाती थी. और आशिफ था, बांडा, फीडो, सोहेल, हालांकि जुनैद को शुरुआत में खेला था, लेकिन उसके बाद वो टीम छोड़ के भी चले गया था. मेरे ख्याल से जो लड़के नहीं छोड़े टीम, वो थे शर्शु भाई थे, बांडा और इफ्ती तो चलो ठीक है खेल ही रहा था, और सोहेल था. जतिन बिकॉज ऑफ फिटनेस रीजंस, क्योंकि टीम भी चेंज हो रही थी. तो मेरे को सबसे एक्चुअली अच्छा ये नहीं दिखा कि मित्तल, अगर किसी के साथ अगर अनजस्टिस हुआ, मेरे ख्याल से वो मित्तल के साथ किया मैंने. आई शुड एग्री दैट बिकॉज ही वॉज ए क्लास विकेट कीपर. तो प्रॉब्लम ये था कि मित्तल को बैटिंग नहीं मिल रही थी, एंड आई कुड फील कि वो फ्राइडे आ रहा है बेचारा, ही वॉज यंग एट द टाइम. तो अगर सिर्फ वो कीपिंग करके जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो वो मैंने भी रियलाइज किया कि हाँ उसको ऊपर बैटिंग नहीं मिल रही. और आपको मालूम भी था कि चार्जर्स में काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो गई थी. हाफिज कलीम, नादिर, कासिम, हर्ष भी खेला करता था, शर्शु भाई थे ऊपर, आशिफ था, इफ्ती था. तो मित्तल की टीम से जाने का मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ है मित्तल पे ही हुई. हालांकि दूसरे प्लेयर भी छोड़ के गए, बट मित्तल वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. उसके ऐसा मतलब आपको विकेट कीपर नहीं मिलेगा यहाँ पे. तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि शबाब में ऐसी कौन सी मीटिंग्स होती थी जो यू नो जो आपको उधर से जुड़े रखते थे. आई होप कि अभी भी आप वहीं पर मीटिंग करते होंगे. नहीं शहबाज, अभी तो आना जाने बंद है, क्योंकि मैं वहां से मूव आउट हो गया. तो उसके बाद आशिफ भी नहीं है वो एरिया में. शर्शु भाई भी थोड़ा सा दूर चले, क्योंकि पहले शर्शु भाई बरदुबई में थे और इफ्ती आया करता था, तो एक अच्छा पॉइंट था वो. तो अभी तो आना जाना भी कम हो गया वहाँ पे. आपको याद है वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्ड क्या यूज होता था? कौन सा वर्ड यूज होता था? किस बंदे का नाम सबसे ज्यादा यूज होता था? चिल्ली. चिल्ली जी. वो एक वहाँ पे हुआ करता है, वो जब भी अपन जाते गर्मा गर्म चाय सबसे ज्यादा फ्रेश आपके लिए. सचू भाई नहीं, उसके अलावा एक और था अड्डा जहाँ पे बैठते थे, बट वो अड्डा इतना फेमस नहीं हुआ, इस्माइलिया. ओके.
इस्माइलिया था बर्दुबई में, उसके बाद करामा में जहाँ मुद्दी भाई का ऑफिस हुआ करता था, डिस्को उसके चाय, सामने अलहारा, डिस्को चाय, हाँ डिस्को चाय, अलहारा कैफेटेरिया का। लेकिन वो अलहारा के एरिया में ऐसा हो गया जो बेसिकली जो स्पेस के हिसाब से जो था वो सबसे बेस्ट शबाब ही सूट हुआ, क्योंकि वहाँ पे लाइक ही सेड जगह भी बहुत थी, कंफर्टेबल भी था, कुछ रश नहीं था। इस्माइलिया ये चाय अच्छी थी, लेकिन उधर इतनी जगह नहीं थी आराम से सुकून से गाड़ी पार्क करके बैठने की। एंड ऑफ कोर्स करामा का तो सही पॉइंट आउट करने लग गई थी वो जगह। ये जो चीजें हैं शबाब का, तो मैं बहुत हिस्सा रहा हूँ, बिकॉज मैं हमेशा इन्वेरिएबली ट्रैवल करता रहता था आगे पीछे। तो शबाब की जो इकोनॉमी में मुद्दी भाई को बढ़ाने का, मुद्दी भाई का बढ़ाने का, इकोनॉमी बढ़ाने का जो हाथ है वो मुद्दी भाई का सबसे ज्यादा है। बिकॉज जो हमारे लड़के आते थे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुद्दी भाई टू स्पॉन्सर द चाय, बारिंग द अदर ब्यूटीफुल थिंग्स इज कंज्यूमर्स में। मुद्दी भाई ने बहुत पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया। नहीं, इट वाज नॉट लाइक दैट शहबाज के, क्योंकि जो लड़के उस टाइम पे खेल रहे थे ना, दे आर लाइक मोर लाइक ए फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इट वाज वो फीलिंग नहीं थी, क्योंकि आप बिलीव करें कोई भी जाता था, किसी को मेरे से पूछने की जरूरत नहीं थी कि अगर मुस्तफा को कुछ चाहिए, वो बस जाता था, जाके जो ले आ जाता था और बोलता था मुद्दी भाई। एंड व्हेन शर्शु भाई यूज्ड टू कम, ही यूज्ड टू पे आउट, वो देते थे जो भी है। आशिफ का सबसे अच्छी ये चीज थी कि अपनी जो चीज है ना उसका पैसा वही देगा। यस, ग्रुप में बैठेगा, ग्रुप में बैठेगा, लेकिन अनलेस इट इज नॉट सेड कि आशिफ, मुद्दी भाई हमें कहें कि आशिफ ये है, ये ले, if he wants something he will go and he will make sure that it is he who is paying, he is not mixing with the other stuff जो लिया गया है। ये एक चीज उसकी थी कमेंडेबल, जो आज तक उसने मेंटेन रखी है। चाहे फिर वो ग्राउंड के ऊपर भी रिफ्रेशमेंट्स जो आते हैं उसके अंदर भी है, अगर वो जा रहा है चाय लेने या सैंडविच लेने, तो बाकी सब तो हाँ चार्जर्स, मुद्दी भाई चार्जर्स काफी फेमस हो गया था नहीं ये कभी कोई भी आता था तो भाई आ गई है। शर्शु भाई वहाँ पे चाय वाला था सलीम, उम्मल खान से वो लेकर हम दुआ भी अच्छी। अभी वो नई गाड़ी ले लिया हो, तो मैं कभी भी वही चाहता हूँ, मैं बोलता कि इसमें से आधे पैसे मेरे हैं। नहीं, बट वो बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। हमें याद है जब हम लोग ने उमलपुर नगर में शुरू किया था, तो बंदा आता था पुरानी टेरसेल लेके, फिर उसका हो गया पुरानी सेकंड हैंड करोला, फिर अचानक से कुछ 2-1 साल के अंदर ही ब्रांड न्यू कैमरी। मतलब प्रोग्रेशन हो तो ऐसा हो माशाल्लाह। अभी एक्सट्रेल है शायद, एक्सट्रेल है, ट्रू। हाँ अभी निसान एक्सट्रेल है। तो सामान भी ज्यादा रखता होगा ना उसमें। तो यस दैट इज ट्रू। आई मीन वो सब जाके बस ले लेते थे और बस बोलते थे चार्जर्स। अब ठीक है वो टाइम पे सही था। आई मीन लाइक मुद्दी भाई सेड फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, तो वी नेवर यूज्ड टू ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके अंदर भी आशिफ ने अपनी हमेशा वो बोलते ना एक इंडिविजुअलिटी मेंटेन की है कि वो ठीक है, जब मुद्दी भाई हमें जाके कहें कि आशिफ ले ले कुछ है, मतलब ले जाके, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग व्हेन आशिफ गोज एंड टेक समथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो अकेला अगर जाता, अगर गाड़ी वाला रिफ्रेशमेंट वगैरह आया है, वो अकेला जाएगा, वो अगर चाय लेगा, व्हाटएवर बी द केस, व्हाटएवर ही टेक्स, he will make sure that he pays for it. So that's hats off to that person. Yeah, he's still today he's maintained that. Very nice. So let's moving on to the next part of the interview. मुद्दी भाई, मैं कुछ ऐसे ना प्लेयर्स के नाम लूंगा। मैं पिछली बार मैंने ऐसा किया था कि मैंने एडजेक्टिव्स दिए थे और इंटरव्यू जो सब्जेक्ट उसको वो एडजेक्टिव से मिलते जुलते उनके प्लेयर्स के नाम लेने थे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक्सप्लोसिव बैट्समैन, तो भाई ने कहा था फॉर एग्जांपल हाफिज खलील, ओके, दिस एग्जांपल। तो उस तरह से, बट इस बार मैं आपको उल्टा करूंगा। मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और शर्शु भाई भी प्लेयर्स के नाम आगे पीछे जान कर सकते हैं। आपको उनके बारे में एडजेक्टिव बताना, ठीक है? रेडी? ओके। सबसे पहले प्लेयर शर्शु भाई। शर्शु भाई के लिए एक बड़ा दिल मेरे हिसाब से, क्योंकि खुद ही एकदम काफी खुले इंसान है शर्शु भाई, और एनी टाइम कभी भी कुछ जरूरत हो तो आप शर्शु भाई से मांगे तो शर्शु को मना नहीं करते। माशाल्लाह। इब्तिशाम? इब्ती चुड़ैल। ओके। आशिफ उसकी हंसी की वजह से। आशिफ मैं अभी भी कहूँगा वो मैच्योरिटी लेवल नहीं है क्रिकेट में। अगर आशिफ की मैं बात करूँगा, वो अभी भी छोटे बच्चे कहते हैं, क्योंकि उसको बैटिंग चाहिए, बॉलिंग चाहिए। अगर वो बैटिंग और बॉलिंग नहीं मिली तो मतलब मुश्किल है हैंडल करना। नहीं, बट वो खेलता तो है अच्छा, डीसेंट इनफ। चलो। नहीं, ही प्लेज वेरी गुड, बट
अब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि बैटिंग भी आपको मिले, बॉलिंग क्योंकि दूसरे भी आते हैं खेलने के लिए। सही बात। चलो मूविंग ऑन, जतिंदर बेवड़ा। काजी अच्छा हाफिज कलीम। हाफिज जी यार एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मतलब हाफिज जी का बैट्समैन में आजकल वसीम है, बट स्टिल आई वुड रेट हाफिज जी कैसा बैट्समैन। शर्षु भाई आप भी मेरे ख्याल से इत्तेफाक रखेंगे बात से, जो क्लास हाफिज जी में थी वो जो छक्के मारने की, और हम रिलैक्स हुआ करते जब तक हाफिज जी विकेट पे, हमको मालूम था कि भाई कोई भी स्कोर हम तो चेज हो जाएगा, और काफी मजा आता था उनके साथ खेलने में। मजा तो देखने में, खेलने में और बात करने में भी। उनके साथ जो उनकी कहानियां सुनने मिलती थी, जो मुझे तो मिली है सुनने शबाब में, माशाल्लाह। हाफिज जी मैं कहूंगा he was definitely a gem of a person, he is a gem of a person I will say, लेकिन उनके साथ बेस्ट मैं यही कहूंगा कि जो enjoyable what I mean ठीक है, बाहर भी we meet as friends, as family, part of family, yes, no doubt about it, लेकिन जो लोग हाफिज जी को जानते हैं, जिनके हाफिज जी के साथ अच्छी है, वो ये चीज मानेंगे कि the best moments that you have with हाफिज जी is on the pitch. जब आप उनके साथ बैट कर रहे हैं, उनका जो वो aggressive कैरेक्टर, नेचर, उसके बाद वो किस तरह हेल्पिंग, आप उनके सारे शेड्स देख सकते हैं वहां पे। आपसे अगर एक बॉल मिस हो गई तो आके आपको कहेंगे कि आप ये खेल सकते हैं, ये बंदा ये करेगा, आपका ये शॉट आप खेलिए। आई मीन यू सी ऑल द शेड्स, लाइक आई सेड, ऑल द शेड्स ऑफ हाफिज जी। आप अगर 6 या 7 ओवर उनके साथ आपने बैटिंग कर लिया, ही इज इन अ गुड मूड, ही इज इन अ वेरी गुड मूड, एंड यू नो व्हेन अ बैट्समैन इज इन गुड मूड दैट मींस स्कोरिंग वेल, नीडलेस टू से। तो जब वो अच्छे मूड में हैं, तब यू नो यू गेट टू लर्न, यू एंजॉय, and you know it's really fun. So I have had that privilege to be with him during this हमारी काफी थी इनिंग्स जिसके अंदर काफी लंबी इनिंग्स भी हुआ करती थी, जहां हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, but it was really great to watch him play, and you know everything at that point of time is really enjoyable. So next player is Vinod Banda. विनोद बांडा मतलब आप मुझे क्रिकेट टर्म में बोलना है या उस इंसान के बारे में? जो दिल में आता है वो बोलिए उनके बारे में। बांडा इज लाइक अ ब्रदर टू मी, और चार्जर्स से एक लेवल पे जाने के लिए बांडा का काफी बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि उस टाइम पे क्योंकि शर्षु भाई भी थोड़ा सा इश्यूज के, शर्षु भाई भी आना बंद हो गया था ग्राउंड पे। बांडा वाज द वन, हालांकि वो खेलता भी नहीं था वो ज्यादा, और मैं क्लियर आउट करना चाहूंगा, ज्यादातर जो मेरे पुराने जो चार्जर्स में जो अपने दोस्त लोग थे वो समझते कि बांडा का काफी रोल है कि टीम में से इनका बाहर जाना। इट वाज नॉट लाइक दैट, क्योंकि प्लेटफॉर्म में मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि कल के दिन किसी को ये नहीं रहना चाहिए, एंड बांडा का कोई वो रोल नहीं था। बांडा ऑलवेज बिलीव कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, और बांडा ने कभी किसी को खास तौर से, बांडा जो बोलता था मैं सुना करता था, तो बांडा का यही था कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कि टीम एक अच्छी लेवल पे जानी चाहिए, बिकॉज़ वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ मनी, सो इन रिटर्न वी शुड गेट समथिंग। और 2-3 साल से सब खेल ही रहे थे साथ में, बट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं थे, एंड पर्सनल किसी पे अटैक नहीं था, क्योंकि लोग समझते कि अच्छा बांडा की जैसे ये टीम से गया वो टीम से गया, इट वाज नॉट लाइक दैट। क्योंकि उसके बाद भी मैं सैटरडे प्रीमियर लीग की एक टीम थी जहाँ पे मैं अपने पुराने दोस्तों को लेके खेलता था। फ्राइडेज वी यूज्ड टू हैव अ रेगुलर प्रोफेशनल प्लेयर्स विद अस, एंड सैटरडे जो पुराने जो हमारे दोस्त थे तो वो लेके 2016-17 सीजन में ना, या तो इट वाज वी वर मैनेजिंग गुड, रिलेशन भी इम्पोर्टेंट था और टीम भी इम्पोर्टेंट थी, तो बांडा आई वुड से इज लाइक अ ब्रदर टू मी। नेक्स्ट है नादिर भाई। इत्तेफाक से नादिर भाई बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं अभी। नादिर भाई एक मिनट प्लीज, आप कैप पहन के आप आइए, क्योंकि नादिर भाई का वो एक सिग्नेचर है कि कैप रहना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिर साहब। सलाम, कैसे हो नादिर साहब, कैसे हो नादिर भाई? ईद मुबारक। ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। आपका भी नंबर आएगा, बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ कीजिए। इनफैक्ट कोशिश ये करेंगे कि जिस वक्त आपके साथ इंटरव्यू ना, उस वक्त मोदी भाई भी साथ में आपके साथ सवाल पूछने के। जी बिल्कुल।
नहीं, नादिर भाई को अगर करना है तो नादिर भाई के साथ रखने चाहिए आजकल का नया टैलेंट जो है वसीम, उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाफिज जी को कोई मसला नहीं। हाफिज जी को जब लेके आएंगे तब मुदीर भाई को लेके आएंगे, क्योंकि नादिर वसीम अभी हम लोग 3 साथ में ही हैं यहाँ पे। अच्छा। तो आप नादिर और वसीम आपको एनी टाइम आपको मिल जाएंगे आसानी, दोनों बाजू में मिलेंगे। बिल्कुल, साथ में बैठाएंगे एक ही कैमरे पे। नहीं, एक ही कैमरे में नहीं, अलग अलग कैमरा, सॉरी। भले से साथ में अवेलेबल हो लेकिन अलग अलग कैमरा होना चाहिए इंशाल्लाह। ताकि अगर एक दूसरे को नीचे से इशारा ना कर सके और कुछ कहने के लिए अगर करना है तो फिर कैमरे में कैप्चर हो। Okay. और क्या हाल है नादिर भाई? सॉरी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? सब ठीक, सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अभी देखते हैं कब खुलता है लॉकडाउन, कब क्रिकेट स्टार्ट होती है, कब मुलाकात होती है अब ग्राउंड पे दोबारा। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात, इंशाल्लाह अभी दुआ में याद रखिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। नादिर started playing with us, शर्षु भाई 2015 में स्टार्टेड, और वहाँ पे टाइम पे ईसीटी में कमेंट्री हुआ करती थी जी, आपको याद होगा। रात में तो सुपरस्टार आपका हुआ करती, तो नादिर के ठेके पे वहाँ पे एक डायलॉग काफी हिट हुआ था, और उसके बाद से नादिर को हम वही बुलाते थे, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। He used to score 80-90 runs in just 27-30 balls। और नादिर की जो एंट्री चार्जर्स में थी, और ये जो भी चीजें शर्ट पे इत्तेफाक से हो रही ना, हम लोग 1-2 दिन पहले ये, क्योंकि फीडो लोग आए हुए थे, तो ये डिस्कशन यही हो रहा था कि ये कैसा है वो कैसा है। नादिर भाई की एंट्री भी बांडा की वजह से हुई, बिकॉज नादिर भाई यूज्ड टू प्ले फॉर इंटरफेस ए डिवीजन जी, और हाफिज कलीम भी वहीं पे थे, और हाफिज जी हमारी टीम में आ चुके थे। तो बांडा एंड हाफिज भी प्लेड, मतलब काफी बड़ा रोल था नादिर को लेके आने, क्योंकि फीडो वाज ट्राइंग टू टेक हिम इन सिंह डीजल। Remember Singh Diesel, right, शहबाज? Yes, absolutely. तो फीडो क्योंकि छोड़ दिया था चार्जर्स। एज अ टीम मैं ये कहूंगा कि सिंह डीजल का काफी हाथ था चार्जर्स के प्लेयर्स को पुल आउट करने में। एंड ऑफ द डे शर्षु भाई, आपको भी खुशी होगी, मेरे को भी होगी, द प्लेयर्स जो वो लिए वो हमारी टीम के थे, और खुशी भी है जो प्लेयर्स छोड़ के गए ना, अच्छा हुआ गए इनडायरेक्टली। मैं फीडो का नहीं कहूंगा, फीडो वाज शर्षु भाई, अगर किसी से गलती हो गई ना, एंड इफ दे कम बैक एंड इफ दे से सॉरी, उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं है। यू रिमेंबर सलमान बाबर, राइट? यस। सलमान जब भी अभी मेरे को मिलता है, ही ऑलवेज यूज्ड टू से सॉरी। रियलाइजेशन होना काफी बड़ी बात है शर्षु भाई, लोगों को रियलाइज हुए बाद भी माफी नहीं मांगते। अब बिलीव करें, मेरे को सलमान अभी 3 से 4 बार मिला पिछले 1 साल में, वो ये बोलता है कि मैं काफी मिस करता हूँ जो चार्जर्स के आप लोगों के साथ इतनी इज्जत दी आप लोग, उसके बाद भी मैं आप लोग को छोड़ के चले गया दूसरी टीम के लिए, एंड ही वाज इन द पीक फॉर्म उस टाइम पे। तो पीपल नो हाउ वी वर। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी आज छोड़ के गए या जो भी बात करते शर्षु भाई, दे टॉक गुड अबाउट अस। ये सबसे बड़ी चीज है, रेस्पेक्ट होनी काफी बड़ी चीज है। तो शहबाज, टीम जीती हारी दैट वाज सेकेंडरी। मेरे को खुशी यही मिलती है कि आज भी अगर हम लोग बाहर गए, खास तौर से क्योंकि शर्षु भाई तो काफी पुराने प्लेयर थे, जानते थे, और मैं अभी 5-6 साल से लोग जानते हैं। मैं शर्षु भाई चले गए, या हम लोग के साथ अगर जतिन भी है, इनफैक्ट जतिन का यू वोंट बिलीव, सैटरडे लीग के दिन द अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट ही हैज फ्रॉम द एम्पायर्स एंड द ऑर्गेनाइजर। 11 को जमा करना सैटरडे के लिए मॉर्निंग 6 o'clock एंड टू बी ऑन टाइम काफी टफ है, क्योंकि सैटरडे लोग लेट ही आते हैं। Absolutely. और एम्पायर के साथ टॉस के लिए ना किच लेट हुआ वो टॉस दे देगा जतिन, तो ये रेस्पेक्ट आपको अपने आप बनानी पड़ती। मैं शर्षु भाई आज भी अगर चले गए ना, तो मेरे ख्याल से ऐसे आउट ऑफ 10 9 लोग ऐसे होंगे जो हमारे से काफी प्यार और मोहब्बत से मिलते। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए ना, मतलब क्रिकेट अपनी जगह पे है ना, रिलेशनशिप हो तो वही सबसे बड़ी बात। या एंड प्लेयर्स एंजॉयड प्लेइंग फॉर चार्जर्स। बाद में क्या हुआ, फाइनेंशियल फैक्टर आ गया, मनी फैक्टर आ गया। अब क्योंकि सबको मालूम था कि चार्जर्स के अगर प्लेयर को तोड़ना है, आप सामने आप पैसा दिखाओ। एंड मेरी और शर्षु भाई की मेंटालिटी ये थी कि ओके, वी आर पेइंग देम समथिंग, हम उतना ही पे करेंगे। व्हाई शुड वी गिव? क्योंकि ये आप एक टाइम पास है, इट्स नॉट लाइक कि कोई आप रणजी या फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। स्पॉन्सर आपके उसकी कंपनी स्पॉन्सर थोड़ी कर रही है। यू गाइस आर वर्किंग हार्ड फॉर योर मनी, यू नो, मतलब आप लोग इतना एफर्ट डाल के आप पैसा कमाते हो। आप एक टीम के लिए टूर्नामेंट में एंट्री कर रहे हो ना, मेरे मतलब गाइस हु आई नो फ्रॉम आवर जनरेशन, फॉर देम द एंट्री फी इटसेल्फ वुड हैव बीन अ ग्रेट स्पॉन्सरशिप एंड अ प्रिविलेज टू प्ले फॉर दैट टीम।
बट ऑफ लेट फॉर द लास्ट 10 इयर्स ऐसा सीन हुआ है यूएई क्रिकेट में कि वो सब ठीक है, मुझे पता मुझे पैसे कितने मिलेंगे तो मैं तुम्हारी तरफ आके कहता हूँ, कल को कोई और ज्यादा पैसे देगा तो उधर जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेट है ये सीन, बट एट द एंड ऑफ द डे मुदीबा आई थिंक जो लोग आपके साथ रहेंगे इवन आफ्टर दिस मनी ट्रिप वो आपके सच्चे दोस्त हैं, दे स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग। नहीं मेरे को ना सलमान बाबर का मेरे को काफी तकलीफ थी, क्योंकि मैं काफी मेरे पास जितने भी प्लेयर्स थे मैं सबके साथ मतलब सब मेरे चहीते थे, तो जब एक एक जाता तो तकलीफ डेफिनेटली होती। जुनैद गया था, हाँ जुनैद के टाइम पे जुनैद साहब भी मतलब चलो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो दोस्ती अच्छी अभी खेलते हैं। सलमान से अब हम साथ में नहीं खेलते, बट व्हेनेवर वी मीट वो मेरे साथ यही जिक्र करता है कि मुदी भाई गलती हो गई। मैं बोला यार अब तो 3-4 बार बोला और कितनी बार बोलेगा, बोलता है नहीं आप इतनी इज्जत दिए लेकिन फिर भी हम ऐसा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मजा आता कि लोग अच्छी तरीके से हम लोग मतलब याद करते हैं अभी भी। और तो दूसरे और लोग भी बहुत हैं जिनके बारे में मुझे आपसे ओपिनियन लेनी है, आपका नजरिया लेना उनके बारे में। तो आपके बहुत ही क्यूट से ब्यूटीफुल से बॉडी बिल्डर टाइप के जो प्लेयर थे हर्ष, उनके बारे में आपका है? यार हर्ष जान है यार, बिलीव मी, वो इसकी बात मतलब हर प्लेयर में देखिए शर्शु भाई है, शर्शु भाई एकदम बड़े दिल के आदमी, हाँ मतलब सबका अपना अपना एक बेहतरीन मतलब अच्छी क्वालिटीज है जी। इफ्ती हो गया तो हर इंसान में ऊपर नीचे हर चीज रहते, इफ्ती में एक अच्छी क्वालिटी है कि ठीक है जब तक है मूड में है सही है, जब बैटिंग चाहिए ना तो इफ्ती के उतना सेल्फिश कोई नहीं है। मैच चल रहा है शहबाज, रन चाहिए ओवर में 10-10, हाँ ये साहब लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैच से पहले मैं उसको कुछ बोल जाता तो नाराजगी में मैच ही हरा दिया हो। मतलब ही वाज क्रूशियल मैच था या ऐसे मतलब नहीं व्हाटएवर क्रूशियल रन दो कुछ भी रन दो, तो मतलब बात हो जाता था कि इतनी अगर मूड में रहा तो उसका अच्छा प्लेयर कोई नहीं, ऑफ मूड हो गया तो वो एक सेम बांडा की एक अलग है। जतिन भी माशाल्लाह से यू नो हिम वेरी वेल जी। शर्शु भाई आई थिंक ही लेफ्ट कुछ आ रहा है, वो उनका आई थिंक कुछ कॉल आ रहा था तो ही हैड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम लैपटॉप। तो जतिन का भी मैं हालांकि मैं बोला था कि आपको वो जतिन में इतनी अच्छी क्वालिटीज है कि कल मेरे पास ईद के लिए आया था एंड जतिन पहला इंसान है जिसने सबको जमा किया, बोला कि नहीं मिलना है, तो मैं बोला कि ठीक है आ जाओ सब मिलो मुझे, मतलब वो एक अंदर से आनी चाहिए, मोहब्बत है इसलिए वो कर रहा है। बांडा है, बांडा से आज हम टच में। सेम चीज हर्ष है, हर्ष का प्लस पॉइंट ये है क्योंकि हर्ष वाज वर्किंग फॉर जीएमसी और हर्ष की जब क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा था, ही स्टॉप प्लेइंग फॉर इंटरफेस, फिटनेस रीजन से ही स्टॉप एंड ही वाज द वन जो पहला कैप्टन था इंटरफेस का। तो हर्ष जब हमारे पास आया straight away I have given him the captaincy, right, because I know he was the captain in Interface and Interface was a big team. तो वो हर्ष को याद रह गया कि हाँ भाई मुद्दी भाई मेरे साथ ऐसे थे, और you won't believe मैं 2 या 3 कार्स लिया वहाँ से GMC से and I have got a good like discount. तो बात बहुत अच्छा रहने के फायदे काफी है। आपने इतनी जो परफॉर्मेंसेस देखी है, आपकी 3 मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस कौन सी थी जिसमें आप इन्वॉल्व थे? See, I would rate DPL टूर्नामेंट शहबाज सबसे यादगार है, ऑल्दो तो हम फाइनल में नहीं जा सके, वी प्लेड सेमीफाइनल, और काफी आप भी थे उस टाइम पे, आप आया करते थे डीपीएल में, कोई प्रोफेशनल टीम नहीं थी हमारे पास, we were just a bunch of guys के सिर्फ पैशन के लिए खेल रहे थे। The best part of Chargers was कि फील्डिंग काफी तगड़ी थी हमारी। In the whole tournament हम सिर्फ फील्डिंग के से हम आगे आए। फर्स्ट मैच विद लॉस्ट अगेंस्ट रेडियो मिर्ची, they were 30 for 5, आशिफ 4 विकेट लेके था एंड आई ड्रॉप द कैच। अभी भी याद है पॉइंट पे मैंने कैच ड्रॉप किया था, इजी सिटर इट वाज, और उस लड़के ने कुछ 80-90 मारे, द स्कोर वाज 180, वी लॉस्ट। द नेक्स्ट 2 मैचेस वाज मस्ट विन। शर्शु भाई वापस फॉर्म में, ताबड़तोड़ 30-40 ऑन टर्फ विद इन नो टाइम, मतलब 8 या 10 बॉल के लिए शर्शु भाई स्टार्ट दे दिए। एंड निंजा वाज देयर, नितिन वाज देयर, इमरान वाज देयर जो पठान, नहीं इमरान और मुस्तफा तो मतलब लोअर ऑर्डर, इमरान मुस्तफा बट वो फील्डिंग की बात कर रहे थे ना, तो मतलब मैं बोल, हां फील्डिंग में मुस्तफा ने भी कैच लिया था बाउंड्री पे, इमरान ने कैच लिया था बाउंड्री पे, वन ऑफ दोस मैचेस। जुनैद वाज देयर, जुनैद उसका भी थ्रो अच्छा था वो टाइम पे। आशिफ यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फील्डर, आशिफ भी सेफ हैंड था। तो एक हो गया डीपीएल, क्योंकि हम लोग डीपीएल में काफी अच्छे टीम को हराते हुए द फाइनल वी लॉस्ट टू कुवैत, तो कुवैत से सेमीफाइनल सॉरी कुवैत से जो टीम आई थी उसमें तकरीबन वो इंटरनेशनल कुवैत के खिलाड़ी थे उसमें। स्टिल वी गेव अ गुड फाइट, वी स्कोर्ड अराउंड 120-121। थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट और पहली बार खेल रहे थे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो गया, वी लॉस्ट दैट मैच। बट द बेस्ट पार्ट वाज
इमरान बिकेम बेस्ट बॉलर और मुस्तफा उस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट फील्डर था, तो एक अचीवमेंट है एज ए हम लोग टीम जो भी हम लोग चला रहे हैं। माई शर्शु भाई, मेरे ख्याल से शर्शु भाई भी काफी खुश हुआ होगा कि हमारी टीम के 2 बंदों को ये अवार्ड मिला। द नेक्स्ट बिग मूवमेंट जहाँ पे चार्जर्स को जो हाइप मिली, पीपल केम टू नो के चार्जर्स एक टीम है एंड दे वांटेड टू कम एंड प्ले फॉर अस। इट वाज 2015 रमजान ECT कप। वो सबसे बड़ा बूस्टर था हमारे लिए। वो टूर्नामेंट में हमने एक मैच भी नहीं हारा, फाइनल तक हम लोग अनडिफिटेड थे। हाँ, स्टार्टिंग मैच मतलब वी हैड अ वेरी गुड टफ कंपटीशन विद द टीम्स। ऐसा नहीं कि हमारी टीम वो कुछ खास थी, लेकिन पहले मैच में मेरे ख्याल से शर्शु भाई ही गेव अस अ गुड स्टार्ट। हाफिज कलीम क्लिक नहीं हुए टिल नॉकआउट। टिल नॉकआउट 10 रन क्रॉस नहीं करे वो। नादिर एंड कासिम यूज्ड टू स्कोर एंड डाउन द ऑर्डर हमारे पास इमरान था, सलमान बाबर थे, मतलब बैटिंग पोजीशन काफी अच्छा था। एंड फाइनल में मेरे ख्याल से सेमीफाइनल फाइनल में फिर हाफिज जी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था एंड वी वन दैट। शायद आप भूल रहे हैं वो टाइम पे एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर था सईद वाज एक्सीलेंट राइट। व्हाट इज नीचे अगर वो 30-40 रन्स जो 8-9 बॉल के अंदर रखे, ठीक है, अगर मैं ऊपर से वो कर रहा हूँ तो नीचे से एंड वो करते थे एंड दैट वुड शूट द टोटल। जो 150 का हमारा टोटल था, ऑल ऑफ अ सडन 190-200 हो जाता था एट टाइम्स। उन्होंने भी बहुत एंड हाफिज जी को ये क्रेडिट जाता है, वो लेके आए थे उनको टीम में, सईद को। तो शहबाज, द बेस्ट पार्ट वाज हमारे पास कोई मतलब ऐसा स्पिनर वही भी नहीं था। शर्शु भाई, यू रिमेंबर राइट, पांडा वाज द ओनली वन लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड ही वाज इंजर्ड ही था। मोदी भाई थे नहीं, एंड इन द टूर्नामेंट आई गॉट 7 विकेट्स। but मोदी भाई की bowling was not easy to play. अच्छा, ये 2 टूर्नामेंट हो गए। और तीसरी मेरे ख्याल से शर्शु भाई आई डोंट, आप भी थे उसमें। ये अपना ये टूर्नामेंट जो पीछे हाजी के ग्राउंड पे, जो 6 नंबर ग्राउंड पे वी डिफीटेड इनकी परवेज साहब की टीम थी ये ग्लोबल, इन विच उमेर, वहीद, ये पूरे बड़े प्लेयर खेल रहे थे। वी हैड ओनली नादिर एंड हाफिज जी। तो वो मैच में द बेस्ट पार्ट वाज कि हाफिज जी 60 मार के आउट हो गए, एवरीवन फ्लॉप। हर्ष एंड इफ्ती ये दोनों स्कोर को 190 लेके गए एंड वी वन द टूर्नामेंट। उस रमजान में हमने 5 टूर्नामेंट खेले, 5 के 5 जीते थे। तो एज ए टीम अगर मैं कहूंगा कि तुम मतलब ये चीजें 3 टूर्नामेंट काफी जल्दी याद आते हैं। 2016-17 का सीजन है, if I'm not wrong, sir. It was in 15. We just started playing night tournament. We just started and we were doing wonders, alhamdulillah. Brilliant. So अब ऐसे 3 परफॉर्मेंसेस जिसमें प्रॉब्ली आप इन्वॉल्व नहीं थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस व्हिच आर यादगार, मेमोरेबल फॉर यू। पहला 150 चार्जर्स के लिए 156 यूज फॉर शर्शु भाई, if I'm not wrong, it's 156. You remember? शर्शु भाई, जस्ट अ सेकंड, मैं एक चीज लेके आऊंगा उसके लिए सबर। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डिस्कस किया था 156 was the first thing, क्योंकि चार्जर्स स्टार्ट हुई थी तो शर्शु भाई 2013। Thank you very much for this. Thank you very much. We already spoke about it. So and the second was Hafiz Kaleem. We were playing in Umal Quain against Eurocon. Shaiman Anwar, he was playing in the team. Okay. And he scored 100. 58 balls में कुछ 100 किया था और they scored 200. तो हाफिज जी और शैमन जब वापस आ रहे थे, they at the time हाफिज जी बस एशिया कप खेल के वापस हुए थे। तो शैमन बोल रहे थे कि यार इधर तो इतनी जान मार रहे हो, सीमेंट क्रिकेट में आप डाइव पे मार रहे हो। तो हाफिज जी थोड़ा सा गुस्से में आ गए और हाफिज जी बोले तो तुमने 58 बॉल्स में जो 100 बनाई, मैं तुम आपको बताता हूँ सीमेंट पे 30 बॉल में 100 कैसी बनती है, और ये 200 मैं 16 ओवर्स में चेस करके बताऊंगा। यूरोकॉन को जो हाफिज जी ने कुछ लगाई थी, और बिलीव में 27 बॉल्स में 100, वी वर 6 ओवर्स 100 फॉर नो लॉस। तो हाफिज जी की एक नॉक ये हो गई और अपने शर्शु भाई की हो गई, और एक नॉक नादिर की कहूंगा मैं। वी वर प्लेइंग अगेंस्ट सिंह डीजल, हाफिज जी शर्शु भाई ऊपर से आउट हो गए, इफ्ती आउट हो गया, और सिंह डीजल के साथ हमारी राइवलरी थी। एंड इट वाज इन 2015 रमजान ECT नाइट टूर्नामेंट, और फीडो को खेलना इम्पॉसिबल हो गया था उस टाइम पे। शर्शु भाई, यू रिमेंबर राइट, वो
कचरा टाइप बॉलिंग फीडर की अपने द लूप जो वो लूप देता था। नादिर भाई स्विच हिट पे छक्के ही स्कोर्ड अराउंड 86 रन शहबाज। और कासिम भी था उसमें, मोहम्मद कासिम, ही स्कोर्ड अराउंड 110। लेकिन जो इम्पैक्ट नादिर की इनिंग का था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन मेरे को मतलब अगर आप जैसी पूछेंगे तो कभी भी अगर आज से 10 साल बाद की अगर आप पूछेंगे मेरे ख्याल से दिमाग में जल्द से जल्द यही तीन चीजें आएंगी। अब एक सवाल ये है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स आपने काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, जैसे आपने कहा कि ये तीन तो फिलहाल मेरे दिमाग में आ रही है, बट देयर आर सो मेनी परफॉर्मेंसेस ओवर द इयर्स दैट यू हैव सीन। ऐसी कोई परफॉर्मेंस जो आप चाहेंगे कि काश आपने की होती, had you done that? ये शर्चू भाई, लेकिन ना मैं ऐसा सोचता भी था जब आप लोग खेलते थे ना, अच्छा शर्चू भाई ऐसा मारे या इफ्ती मारा तो हम भी मारते, सोचने में काफी अच्छा दिखता, लेकिन मुश्किल है शर्चू भाई। अगर आप इनिंग्स की बात कहेंगे शर्चू भाई जरूरी नहीं इनिंग्स ही हो, बॉलिंग भी हो सकती है, कीपिंग भी हो सकती है, बॉलिंग भी हो सकती है, फील्डिंग भी हो सकती है। बॉलिंग का मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आपकी जो फीस है वो कितने मेरे जैसे लोग जो है वो शायद चाहेंगे कि मैं वो 7 विकेट्स फॉर 12 रन या 10 रन 6 विकेट्स 5 विकेट्स सो मेनी टाइम्स है, तो वो तो मैं खुद चाहूंगा कि काश मैं इमिटेट कर पाता, क्योंकि 5 और 6 विकेट तो मैंने भी लिए हुए हैं, 6 तक मैंने भी लिए, 6 विकेट तो मैंने भी लिए हैं। इनिंग्स तो नहीं कहूंगा, मैंने नहीं लिए, नहीं इनिंग्स तो नहीं कहूंगा, 2 शॉट जो मैं खेलना चाहूंगा, मतलब अगर आगे भी अगर 1-2 साल अगर खेलूंगा तो ट्राई करूंगा कि वो 2 शॉट्स खेलने की इंशाल्लाह। नहीं तो 2 शॉट्स जो कि शर्चू भाई और हाफिज जी के भी फेवरेट शॉट थे। एक जो है नहीं पॉइंट तो दोनों खेलते थे, लेकिन जो हुक और पुल जो मारते थे शर्चू भाई और हल्की सी पट के वो एक शॉट, और एक सबसे अच्छी शॉट में जो आप कवर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जो आप बल्ले का फेस खोल के जो खेलते हैं 80 तक 6 रन के लिए, तो ये 2 शॉट्स खेलना पसंद करूंगा। मुश्किल ही लग रहा है लेकिन ट्राई करते हैं। नहीं इंशाल्लाह अब जैसा आपने कहा है कि इंशाल्लाह लॉकडाउन खत्म होने दो, कितने आपने उस दिन जो हमारे ग्रुप के अंदर शेयर किया कि इंशाल्लाह है, अब ऑलरेडी लोग दे आर वेटिंग एंटिसिपेटिंग कि यार कब खत्म होगा ये लॉकडाउन, कब हम वापस एटलीस्ट क्रिकेटिंग ग्राउंड के ऊपर तो वो सेम टीम है, वो इंशाल्लाह लोग होंगे जिसके साथ हम खेलना वापस शुरू कर सकते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, मैं तो वेट कर रहा हूँ, देखते हैं इंशाल्लाह 6 महीने लगते हैं कि 8 महीने लगते हैं बिफोर थिंग्स बिकम नॉर्मल, बट या बट शर्चू भाई दिस टाइम ना वी विल प्ले ओनली फॉर फन, वी विल एंजॉय दिस टाइम। वो मतलब हाँ जीत हार नहीं है, बट वी दोस्त लोग मिलेंगे, विल हैव सम फन, तो we'll try to make a good team again. ऑटोमेटिकली हाफिज जी, वसीम, नादिर भाई, आप हो गए, आशिफ हो गया, तो आप अगर ये स्कोर देखते हैं 6-7 लोगों की, तो ऑटोमेटिकली आप स्कोर भी बना रहे हैं, तो फन पार्ट आपकी टीम भी अच्छी बनती जा रही है। नहीं अभी सीमेंट क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल से हाफिज जी और वसीम को तो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आप हो गए, मैं हूँ, सोहेल है, जतिन है, जुनेद है, जो पुरानी जो थी ना, दैट वुड बी आई थिंक वो एक बार खेलना चाहिए। वी प्लेड इन द नाइट आई थिंक वन टूर्नामेंट राइट 2 years back। गरीब इंसान यहाँ पर भी है, अगर इजाजत हो तो हम भी कोशिश करेंगे। सॉरी प्लीज कहिए। नहीं मतलब मैं भी कोशिश करूंगा वहाँ पे आने की, तो हो सकता है अगर सेकंड विकेट कीपर मित्तल के बाद अगर चांस मिले तो खिलाने का। नहीं एक्चुअली मैं कोशिश किया था आज से 1-2 साल पहले, रात में टूर्नामेंट में टीम एंटर की थी जहाँ पे शर्चू भाई थे, मतलब पुराने जितने भी थे, सोहेल, जुनेद, पीडो, तो वी लॉस्ट द सेमीफाइनल, बट द बेस्ट पार्ट वाज इतने साल के बाद खेल रहे ना, वही अच्छी बातें ग्राउंड पे, अगर किसी ने मिस किया और एम्पायर कह रहा है कि मुद्दी भाई प्लीज बोलाइए हमारे पुराने लड़के, वी कैन नॉट चेंज देम, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड यार। बट मुद्दी भाई किसी ने अगर कंट्रोल किया होगा ना इन लड़कों को, जैसे जो भी सारे बंदे हैं माशाल्लाह से, अगर किसी ने क्लोज टू कंट्रोलिंग आया भी होगा ना, तो आई थिंक इट्स बीन ओनली यू, बाकी और किसी ने इतनी एफर्ट भी नहीं की होगी कंट्रोल करने की उनको, या उनको तो यानी डायरेक्ट करने के तरीके से, तो इनडायरेक्टली जतिंदर का क्रेडिट ले रहा है।
क्योंकि जो सारे प्लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट अभी इस वक्त जतिन के अंडर ब्लूज में खेल रहे हैं। तो जतिन ने तो पहले ही कहा कि कंट्रोल नहीं कर ब्लूज की टीम को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लूज के जो भी लड़के हैं वो हमें पता है, मार्विन को, मुझे और जतिन को पहले से पता है कि जो भी ब्लूज की टीम है जो भी है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। उनको खेलने दो, जो कर रहे करने दो, जब तक कोई मतलब अंपायर को ग्राउंड से उठा के बाहर नहीं फेंक रहा है या पेनल्टी नहीं दे रहा है तो ओके। नहीं, बट अगेन वी वर प्लेइंग द सैटरडे लीग। मेरे को जतिन की ये चीज भी अच्छी दिखती है शहबाज, क्योंकि ना ऑल्दो वो ही था कैप्टन, बट ऑन फील्ड ना ही यूज्ड टू आस्क मी अ लॉट कि अगर मैं बोल दिया कि जतिन इसको उधर कर दे या इसको इधर कर दे ना, ही यूज्ड टू रेस्पेक्ट दैट। और सजेशन से दूर नहीं है। मेरे ख्याल से या बैक टू बैक वी वन अराउंड 3 to 4 सैटरडे लीग टूर्नामेंट, तो इट वाज वेरी गुड क्योंकि मित्तल था, फीडो, आशिफ, एंड अगर मैं उसको बोल दिया कि ये ओवर अगर उसको दो जतिन बोल तो, एंड मैं उसको बोला कि पावर प्ले यू स्टार्ट बॉलिंग बिकॉज विद द न्यू बॉल ना वो जो लेट स्विंग होती सैटरडे में जो खेलते प्रोफेशनल प्लेयर ज्यादा ट्रबल बहुत करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज बॉलिंग गुड। तो जतिन एज ए कैप्टन फॉर ब्लूज आई थिंक ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। बाकी पुराने लड़कों को लेके आके वापस टीम शुरू करना इट्स नॉट इजी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज डूइंग गुड यार। अबे आगे का नहीं पता बिकॉज़ अभी माशाल्लाह से अभी अब्बाजान बन गए, तो अभी पता नहीं कितना टाइम मिलेगा उनको वापस बाहर निकलने के, जब भी लॉकडाउन। ये अच्छी चीज है, क्रिकेट हो ना हो वी आर इन टच हर्षु भाई, टचवुड, ये काफी बड़ी बात है कि क्योंकि पीपल मूव ऑन यहाँ पे, क्योंकि आप तो काफी बचपन से आप यहाँ पे, यू नो हाउ इट इज लाइफ इन दुबई, लेकिन स्टिल टच में तो काफी अच्छा दिख रहा है। शहबाज ही इज डूइंग ए गुड जॉब कि अपना, शहबाज को कितनी बात करने का शौक था, आज पूरा मौका मिल गया शहबाज बिठा के जो है बस बोलते जा रहा है, अब सुनना है अपने को। नहीं बट माशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा है कि बीच बीच में मुझे बोलने का मौका मिलता ही, ऑब्वियसली तो मैं थोड़ा ले लेता हूँ थोड़ा लिबर्टीज, लेकिन आप लोगों से बातें सुनने का, आपकी स्टोरी सुनने का, क्योंकि बहुत सारे मैचेस चार्जर्स की या बहुत कुछ आप दोनों के करियर टुगेदर में मैं नहीं रहा हूँ इन्वॉल्व, ऑब्वियसली मैं ऑब्वियसली फ्लोटिंग इंसान था, तो आप दोनों की तरफ से जो अंदर अंदर की बातें जो हमें पता चली है अभी इस चैट के ऊपर, ऑब्वियसली जो लोग देखेंगे होपफुली दैट इज समथिंग बीइंग वेरी ग्रेट फॉर मी, और होपफुली लोगों को भी अंदाजा मिलेगा कि कितनी एफर्ट जाती है कोई सक्सेसफुल टीम चलाने के लिए। जस्ट उसमें ऑटोमेटिकली आके हम अपना डिमांड नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू आर लाइक समवन लाइक हाफिज करीम स्टैचर और समथिंग, बट ऐसे कोई आके एरा आके आप डिमांड नहीं कर सकते हो कि मुझे बैटिंग चाहिए इस नंबर पे, मैं इधर ही खेलता हूँ, सब नहीं होता, किसी भी टीम में नहीं होता बहरहाल, बट चार्जर्स स्टैंडर्ड दैट इज समथिंग एल्स। नहीं, बट आफ्टर चार्जर्स अगर कोई टीम में मजा है ना, दैट वाज चैलेंजर्स। राम भाई है यहाँ पे, वो स्पॉन्सर है, आई होप यू नो हिम। तो चार्जर्स बंद या ट्रू। तो राम भाई की टीम को भी मतलब मेरे ख्याल से लास्ट 2018 आउट ऑफ 14 टूर्नामेंट वी वन 13 टूर्नामेंट्स इन बी डिवीजन, एंड ही यूज्ड टू ट्रस्ट मी अ लॉट। अगर आपको फ्री हैंड दे दिया ना कि भाई आप चलाओ, तो फिर तो मजा ही कुछ और रहता। तो वो टीम भी मतलब चार्जर्स के बाद अगर मेरे को कहीं मजा आया नाइट क्रिकेट में खास तौर से, क्योंकि डे में तो मैं ब्लूज के साथ खेल रहा हूँ, तो चार्जर्स, ब्लूज एंड चैलेंजर्स, 3 टीम मतलब चार्जर्स की सी है, बाकी की 2 टीम जितना जी, क्योंकि चार्जर्स में जितना इन्वॉल्व होके खेलता था, ब्लूज में भी मैं इसी खेलता हूँ, और चैलेंजर्स के लिए भी वैसी खेलता था मैं। तो बाकी की टीमों में ठीक है, बट ये 2 टीम बहुत करीब है दिल के। ओके, सो मोदी भाई अगर आप हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहते हैं आपकी तरफ से इस चैट के बारे में, या आपका ये कन्वर्सेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या शहबाज, बोलने को काफी कुछ है, वक्त नहीं है, तो काफी एक अच्छा काम कर रहे हैं, और खासतौर से द बेस्ट पार्ट कि आप जो शर्शु भाई के साथ स्टार्ट किए, बिकॉज शर्शु भाई के पास भी यहाँ की लोकल क्रिकेट काफी अच्छी नॉलेज है, तो ये आइडिया काफी अच्छा है कि आपने एक सही बंदे को आपने चुना के साथ में होस्ट करने के लिए। तो मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें अगर कॉर्पोरेट अगर मिल गया, मतलब मेरी तरफ से पर्सनल अगर एडवाइस रहेगी, क्योंकि यू आर डूइंग ए गुड जॉब, और इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो टू बी इन मतलब शॉर्टकट करने के लिए 3-4 क्वेश्चंस हो गए, और हल्का सा स्टार्टिंग में क्या था करियर और एंड में, और एक चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि शर्शु भाई को याद, शर्शु भाई का मेरा तो डिस्कस हो गया, बट आपको क्या याद है कि आप और मैं कब मिले थे? मुझे याद है, मुझे डेफिनेटली याद है कि आपसे पहली मुलाकात कहाँ की हुई थी। ये था जलील भाई का ग्राउंड, टर्फ पिच का और ग्रास ग्राउंड का, और ये करीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2012-13 या 13-14 का सीजन था, somewhere that time. It was under uncle's captaincy. चार्ल्स अंकल के लिए था, मुझे नितिन भाई लेके आया था, नितिन भाई ने मुझे लेके आए थे खेलने के लिए,
और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम लोग खेलते थे डेल्टा, नहीं हम लोग ब्लूज की तरफ खेलते थे। तो उन्होंने कहा था कि एक टीम है नाइट मैच है, और उस वक्त हम लोग नाइट मैच में ग्रास ग्राउंड पे खेलने गए उतावले गए, जरा सा नाइट मैच में फ्लडलाइट नीचे खेलने के लिए बहुत मजा आता है। और जलील भाई का ग्राउंड उस वक्त बहुत अच्छा हुआ करता था, और ग्रास ग्राउंड पे खेलने का एक्सपीरियंस उस वक्त ऐसे अवेलेबल नहीं था फ्रीली सबको। अभी तो खैर बहुत सारे ग्राउंड्स में माशाल्लाह ये अजमान सभी है, बट वो एक ही ग्राउंड होता था अजमान की तरफ उसका, जहाँ पे ग्रास होती थी, भले सीमेंट पिच था। बट आई केम देयर, आई मेट यू गाइस, आप थे, विक्टर थे, दीपक भाई, नितिन भाई, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चार्ल्स अंकल का जो डोमिनेटिंग प्रेजेंस होता था, टॉप बॉल ऑल इज ओवर, वो जो एक होता था इवेंट। तो एज अ प्लेयर, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जब मैं आया था, आई यूज्ड टू ओपन एट द टाइम, बट मैंने कुछ बोला नहीं। ऑब्वियसली मुझे पूछा गया था, अंकल आस्क्ड मी कहां पे बैटिंग करते हैं, टॉप ऑर्डर नहीं करता, बट डजंट मैटर, आप अपने ऑर्डर की लाइए, wherever you find me fit दे दीजिए। So then as it happened, मुझे नहीं पूछा अंकल ने, 4-5 नंबर पे मिला था मुझे, and that's a different story, okay? ये मेरी स्टोरी सुन रही है। So मुझे याद है, you used to bowl a little bit of medium swing kind of bowling that time, not off spin that time. ये मुझे डेफिनेटली याद है, because मैं कीपिंग कर रहा था, so obviously मजा आता था उधर। मैंने 2-3 मैचेस खेले थे, and then the Chargers का एक्सप्लोजन हो गया into the big league, and suddenly I'm like, okay, this is नहीं, बिकॉज अभी क्या है, शर्शु भाई के साथ अगर बैठेंगे ना, आई डोंट थिंक सो कि 1-2 घंटे भी काफी होंगे, क्योंकि देयर आर मेनी गुड मेमोरीज और काफी ऐसी खींचने वाली भी बातें थी, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है। तो हम लोग इसका सेकंड सेशन करते हैं ना भाई, सेकंड पार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। नहीं, दैट्स व्हाट। तो शर्शु भाई के साथ भी, क्योंकि एक तो प्लेयर रडार में है जिसके साथ मैं शर्शु भाई के साथ मिलकर उनकी लेना चाहूंगा, तो इंशाल्लाह मुझे लेना चाहूंगा इंटरव्यू। तो अल्हम्दुलिल्लाह शर्शु भाई और शहबाज, आप दोनों कंटिन्यू करिए ऐसी, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि मेरी थैंक यू मेरा पेज है व्हिच आई स्टार्टेड UAE फैन फॉर, I want to get those that whole team as well इंशाल्लाह। तो वो एक पार्ट था यहाँ पे UAE में, बट वहाँ पे बैठ के आप यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं, इट इज रियली मतलब वंडरफुल, मजा आ रहा है। और साकिब भाई का भी इंतजार रहेगा मेरे को इंशाल्लाह। इंडोर प्लान में बातें चल रही है, टाइम शेड्यूल हो नहीं पा रहा है अभी तक फिलहाल। मैं चाहूंगा कि 2 से 3 शख्स की अगर आप लेंगे तो मजा आएगा। एक है साकिब भाई जी, एक है खुर्रम भाई जी, और आप एक है रोहन मुस्तफा, बिल्कुल, बिकॉज इन लोग का काफी UAE क्रिकेट में काफी बड़ा रोल है। इंशाल्लाह अगर ये जब मैं इन लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ कोशिश करके बैठूंगा चैट पे, तब आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर हो तो वहाँ पे बेहतर होगा हमारे लिए, बिकॉज एक आपका कनेक्शन डायरेक्ट है उनके साथ। तो जो सवाल आप पूछ, जैसे शर्शद भाई हेल्पिंग मी टेक योर इंटरव्यू, अगर आप मुझे हेल्प कर सकते हो उनके इंटरव्यू लेने के, तो इट विल बी मच बेटर। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।